Today we are starting with lesson number 8, that is transition and inner transition elements. Yes, we are starting with the lesson transition and inner transition elements. Chapter is a two-part. The first part is about the transition element and second part is about the inner transition element. So first we'll start with transition elements. First, we will start with transition element. Now, the first point we can say here, the transition elements belong to D block of the periodic table. Transition element belong to the D block of the periodic table. मतलब हमारे periodic table का जो D block है, वहाँ के जो elements है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? Transition element. I'll just draw a rough sketch. Normally in the periodic table, normally here on the left hand side, here we have the element called as a S block, group 1 and 2. S block, group 1 and 2. Here we have the element from this side, that is D block. All these middle elements which are called as a D block. यहाँ से लेके यहाँ तक D block. And then here we have the element called as a P block, which element here are from group number 13. Sorry, group number 3 to group number, last group is 12. All these elements. So 3, 4, 5, 6, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Uneven was, but these are the elements. So from group number 3 to 12, these elements are called as the transition element. Yes, they are called as a transition element. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. And then here we have the 13. Here we have a 13 to 18. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Here. So here we have the P block element. Here we have this. So on the middle, at the middle of the periodic table, we have the element called as a D block element. Okay, they are from group number 3 because we know the vertical columns are called as a group.
vertical column are called as group. Of course, we'll discuss this when we do the position, but vertical columns are called as the group, and from which group? Group number 3 to group number 12. 3 to 12 are the D block element. Okay. So what is the first point we have said here? The first point we have said here, the transition element belong to the D block of the periodic table. So these are the elements from group number 3 to group number 12 are called as the D block element. They are called as, so D block element हमारे यहाँ पे रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे? ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ये हमारा डी ब्लॉक का पोजीशन, डी ब्लॉक एलिमेंट, करेक्ट. Then second point you can see, second point I can write here, the transition metal atom has an incomplete D subshell, incomplete D subshell, or it give or it give cations with incomplete D subshell. See here, the transition metal, अगर हमें किसी को transition element बोलना है, see you know that all D block element of the periodic table are called as a transition element, correct? तो यहाँ से लेके, इधर से लेके, यहाँ से लेके यहाँ. So all the transition D block element of the periodic table, D block element of the periodic table are called as a transition element. सेकंड क्या क्या देखो, द ट्रांजिशन मेटल, मतलब यहाँ पे जो भी हमारे मेटल एलिमेंट रहेंगे, यहाँ पे हमारे जो भी मेटल रहेंगे, ऑल द ट्रांजिशन, मोस्टली मेटल, ऑल ट्रांजिशन मेटल एटम हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल, मतलब उनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहेगा, उनका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहेगा. तो जिसे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलोगे, या जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलना चाहते हैं, वो हर एक एलिमेंट का, हर एक मेटल का क्या रहेगा? डी ऑर्बिटल क्या रहेगा? इनकम्प्लीट रहेगा. और इफ इट इज देयर फॉर्मिंग एनी कैटाइन, तो उनका कैटाइन जो रहेगा, वो कैटाइन के पास भी क्या रहेगा? इनकम्प्लीट डी सबशेल रहेगा. ये पॉइंट मैं आपको और डिटेल में बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब मैं कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तब, लेकिन अभी टाइम के लिए ध्यान में रखना. व्हाट इज ट्रांजिशन मेटल? द ट्रांजिशन मेटल एटम हैज इनकम्प्लीट डी सबशेल, इनकम्प्लीट डी सबशेल, मतलब उनका डी सबशेल इनकम्प्लीट रहेगा. और अगर उस मेटल एटम में कुछ कैटायंस अगर फॉर्म कर दिया, तो कैटायन का भी डी सबशेल कैसा रहेगा? इनकम्प्लीट रहेगा. मतलब अगर मेटल एटम का डी सबशेल इनकम्प्लीट है, और अगर कैटायन का भी डी सबशेल अगर इनकम्प्लीट है, तो then that can be called as what? Transition metal. Now D subshell incomplete means what? Incomplete means normally D orbital contains 10 electron. Normally D orbital contains 10 electron. So the D orbital में हम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं? 10. तो if D orbital और D subshell भी बोल सकते हो, either you can call it as a orbital or you can call it as a subshell. If the D orbitals contains
D1 to D9 electron. If d orbital contains D1 to D9 electron, D1 9 to electron, then the metal atom जो भी रहेगा और its cation can be called as transition elements. मतलब अगर हमारे पास नॉर्मली हमें मालूम है कि डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो 10. मैक्सिमम डी ऑर्बिटल कंटेन्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन 10. लेकिन अगर हमारे डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है D1 से लेके D9 तक, D1 से लेके D9 तक मतलब डी ऑर्बिटल इज इनकम्प्लीट. तो अगर हमारा डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहेगा मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन अगर रहेंगे, तो वो जो हमारा मेटल एटम है या उसका जो भी उसने कैटायन फॉर्म किया रहेगा कैन बी कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. तो व्हेन वी कैन कॉल एज अ एलिमेंट एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, अगर उसका डी ऑर्बिटल क्या रहेगा इनकम्प्लीट रहेगा. सो इन शॉर्ट आई कैन राइट हियर द एलिमेंट with their incompletely filled d orbital elements with their incompletely filled d orbital in atomic or in their common oxidation state are called as transition elements. मतलब अगर हमारे पास देखो ये हमारा मेन पॉइंट यहाँ तक है इधर. These are all like you just given as the explanation first, second and third. सबसे पहले what I have said here कि हम ट्रांजिशन एलिमेंट किससे बोलेंगे जिस एटम के पास उसका डी सबशेल कैसे रहेगा इनकम्प्लीट रहेगा. और अगर इस मेटल एटम में कुछ कैटायन अगर फॉर्म किया रहेगा तो कैटायन भी डी सबशेल कैसा रहेगा इनकम्प्लीट रहेगा. But normally we know that in the d orbital we can have maximum 10 electron, correct? तो अगर किसी d orbital में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन्स है, that means that the metal atom or cation can be called as a transition element. The metal atom or cation can be called as a transition element. And so therefore we can say here the elements with their incompletely filled d orbital either in the atomic मतलब नॉर्मल मेटल में और in the their common oxidation state मतलब कैटायन के फॉर्म में. मतलब अगर कोई भी एलिमेंट प्रॉपर मेटल फॉर्म में रहेगा या उसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर रहेगा और अगर उसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहेगा then that element can be called as a transition element. That can be called as a transition element. So basically what is transition element? अगर कोई एलिमेंट का डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है मतलब डी ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन्स अगर है इन द फॉर्म ऑफ द मेटल एटम और इन द फॉर्म ऑफ इट्स कैटायन देन दे आर कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट. ओके, तो हमारे यहाँ पे 2 पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर दिए. सबसे पहला वाला पॉइंट हमारा क्या था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो यहाँ पे जो एलिमेंट है ये पूरे बॉक्स में जो मिडिल का जो बॉक्स है उनको हम लोग क्या बोलेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे. सेकेंड,
द ट्रांजिशन मेटल एटम हैज कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट अगर रहेगा तो उसका इनकम्प्लीट डी सबशेल रहेगा एटम के फॉर्म में भी और इन इट्स कैटायन आल्सो. ओके, देन आई गो फॉर थर्ड पॉइंट. The next one, they exhibit properties between those of S and P block element. मतलब इनके जो प्रॉपर्टीज रहेंगे the values of the properties are going to between what, the values of the properties are going to between S block and P block. क्योंकि हमें मालूम है यहाँ पे देखो, अगर ये हमारे यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट है तो डी ब्लॉक के लेफ्ट साइड में कौन आ रहा है, एस ब्लॉक, और डी ब्लॉक के राइट साइड में मतलब यहाँ पे इधर कौन आ रहा है, पी ब्लॉक. तो इनके प्रॉपर्टी जो रहेंगे वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बिटवीन रहेंगे, इन बिटवीन रहेंगे. करेक्ट. तो they exhibit the properties between those of S block and P block element. Next, the electropositivity. The कौन से property? The electropositivity, reactivity, and other properties shows a gradual change from S block to P block. मतलब they have just mentioned some property. मतलब अगर हम लोग अगर इनके इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर बात करेंगे या उनके रिएक्टिविटी के बारे में अगर बात करेंगे तो इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और रिएक्टिविटी और बहुत सारे अदर प्रॉपर्टीज जो है क्या कहेंगे, दे शोज द ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक. ग्रेजुअल चेंज मींस व्हाट, सो आई जस्ट एक्सप्लेन अगेन. नॉर्मली वी से कि यहाँ पे एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स है नॉर्मली हियर जो एलिमेंट्स है दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और यहाँ के जो एलिमेंट्स है दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इसका मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और ये कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव. इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक और इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एस ब्लॉक से ज्यादा रहेगा और पी ब्लॉक से कम रहेगा. इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एस ब्लॉक से ज्यादा रहेगा और पी ब्लॉक से कम रहेगा. मतलब इनके जो भी प्रॉपर्टीज है इनका वैल्यू किसके बीच में रहेगा, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रहेगा. मतलब एस ब्लॉक से ज्यादा रहा तो पी ब्लॉक से कम रहेगा और अगर पी ब्लॉक से ज्यादा रहा तो एस ब्लॉक से कम रहेगा. बट इनके जो भी प्रॉपर्टीज है वो हमें इनके बीच में इनके इनके बीच में पाने के लिए मिलेंगे. करेक्ट, इनके बीच में पाने के लिए मिलेंगे. सो व्हाट वी कैन से हियर, उन्होंने जस्ट एग्जांपल देखिए, इनका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कैरेक्टर, इनके रिएक्टिविटी एंड अदर प्रॉपर्टी शोज अ ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक. मतलब इनका अगर रिएक्टिविटी की भी बात करेंगे कैन से कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव, दे आर लेस रिएक्टिव. तो इनका रिएक्टिविटी भी इनके बीच में आ रहा है. किनके बीच में आ रहा है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आ रहा है. करेक्ट. सो हियर the electropositivity and reactivity and other properties shows a
ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक, मतलब ये भी प्रॉपर्टी होंगे, ग्रेजुअली चेंज होते रहेंगे अगर हम लोग एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जा रहे हैं. मतलब मे बी आई कैन से हियर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी positivity decreases when we move from S block to P block. मतलब अगर हम लोग फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव डिक्रीज कहाँ से, एस ब्लॉक से पी ब्लॉक तक. मतलब एस ब्लॉक विल बी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, पी ब्लॉक विल बी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव. मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करके क्या हो रहा है, स्लोली स्लोली डिक्रीज हो रहा है, मतलब ग्रेजुअली चेंज हो रहा है. सो ये प्रॉपर्टी था. द इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड रिएक्टिविटी एंड अदर सच प्रॉपर्टी शोज व्हाट, a gradual change. Slowly the value of the property goes on changing when you go from S block to P block. Okay, next. The very important point here, the n-1 d orbital, the n-1 d orbital, either you can call it as the orbital or you can call it as a subshell. The n-1 d orbital is successively filled in each element. मतलब अगर हम कोई भी डी ब्लॉक अगर एलिमेंट लेंगे तो डी ब्लॉक कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होगा, n-1 डी ऑर्बिटल. कोई भी, मतलब अगर आप कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट लोगे, और डी ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं. तो कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट या कोई भी ट्रांजिशन एलिमेंट अगर आप लोगे तो उसमें कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होगा, n-1 डी ऑर्बिटल, where n is called as the ultimate or बैलेंस शेल. n का मतलब अल्टीमेट, मतलब अल्टीमेट और बैलेंस शेल, और इसे हम और भी बोल सकते हैं. इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज द आउटर मोस्ट शेल. मतलब n का मतलब क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल. सो आइदर यू कैन कॉल्ड एज द अल्टीमेट शेल, or you can call it as a valence shell, or you can call it as the outermost shell. So n-1 is what, n अगर हमारा outermost रहेगा तो n-1 मतलब previous shell. तो previous shell can be called as a, it is called as a penultimate shell. It is called as a penultimate shell. मतलब normally हम इंग्लिश में बोलेंगे second last, लेकिन यहाँ पे हमें second last word use नहीं करना है. second last word use नहीं करना है, हमें क्या word use करना है, penultimate. Okay, I'll explain again. हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा, मतलब कोई भी जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखने जाओगे तो कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा, इन विच ऑर्बिटल, n-1 d ऑर्बिटल. इन दैट n, ओनली n का मीनिंग क्या होता है, अल्टीमेट और आउटर मोस्ट. n का मतलब आउटर मोस्ट. लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ पे एंट्री करेगा, n-1 में एंट्री करेगा. तो n-1 मतलब सेकेंड लास्ट शेल, और सेकेंड लास्ट शेल में हम लोग क्या बोलेंगे, पेनल्टीमेट शेल. So we can say here, in case of transition element, transition element means what, d block element
in case of transition element or in case of d block element, the last electron enter into, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा n में नहीं जाएगा, n मतलब लास्ट शेल में नहीं जाएगा, बट प्रीवियस में n-1 में जाएगा. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1d सबशेल, n-1d सबशेल या और n-1d ऑर्बिटल. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1d सबशेल और ऑर्बिटल. मतलब हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो d में एंट्री करेगा, लेकिन d मतलब d कौन सा, आउटर मोस्ट का d नहीं रहेगा प्रीवियस में. मतलब आई जस्ट राइट वन एक डायग्राम. अगर यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, ये अगर हमारा फर्स्ट शेल है, ये अगर हमारा सेकेंड शेल है, ये अगर हमारा थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है. तो ये अगर हमारा लास्ट शेल है जिसे मैं नाम दूंगा n, ये अगर हमारा n है, तो इसके बाद नीचे वाला इसे हम लोग नाम क्या देंगे, n-1. और देखो यहाँ पे भी अगर हमारा लास्ट शेल है तो यहाँ पे भी कौन से ऑर्बिटल रहेंगे, s p d f. ये हमारा सेकेंड लास्ट शेल है, यहाँ पे भी कौन से ऑर्बिटल रहेंगे, s p d एंड f. करेक्ट. तो लास्ट शेल में भी कौन से ऑर्बिटल है, n. लास्ट शेल मतलब n, s p d f. और सेकेंड लास्ट शेल में भी कौन से ऑर्बिटल्स है, s p d f, सारे ऑर्बिटल. लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो n-1 में, मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा. और यहाँ पे भी कौन से ऑर्बिटल में, s में नहीं, p में नहीं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा, d में. तो इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू विच ऑर्बिटल, n-1d ऑर्बिटल. ओके. n-1 का मतलब अगर मैंने बोला कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल टू हमारा शेल फोर्थ है, अगर n का मतलब अगर हमारा फोर्थ है तो 4-1, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा, 3d में. फॉर एग्जांपल अगर हमने n का वैल्यू अगर फोर्थ ले लिया तो इलेक्ट्रॉन 4-1 मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा, 3d में एंट्री करेगा. ओके. सो व्हेन वी आर राइटिंग द कॉन्फिगर, हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारा d ब्लॉक के केस में सी the n-1d orbital is successively filled in each element. मतलब हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा, हर एक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा, n-1d में एंट्री करेगा. उसमें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ n. n का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल, और आउटर मोस्ट शेल की जो बात सेकेंड लास्ट शेल है उसे हम लोग क्या वर्ड n-1 बोलेंगे. अगर न्यूमेरिकली लिखना है तो n-1, और नाम लिखना है तो क्या लिखोगे, पेनल्टीमेट शेल लिखोगे. और इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, मतलब अगर हमारा एलिमेंट ट्रांजिशन है, एंड वी नो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ओनली कॉल्ड एज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट. और इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो कहाँ पे एंट्री करेगा, n-1d सब शेल में और इन द ऑर्बिटल में एंट्री करेगा. डायग्रामेटिकली देखना है तो अगर ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है तो हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएगा. नॉर्मली हमें मालूम, अभी तक कैसे हमने सीखा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन goes into which orbital, outermost orbital. अभी तक हम लोग ने देखा है in case of s block element, in case of p block element, we always say last electron goes to the last shell. लेकिन यहाँ पे d block में वैसा नहीं हो रहा है, ट्रांजिशन में वैसा नहीं हो रहा है. लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, इन द पेनल्टीमेट शेल, मतलब सेकेंड लास्ट शेल में जा रहा है. और सेकेंड लास्ट शेल में भी कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, d ऑर्बिटल में जा रहा है. इसलिए उसका क्या लोकेशन बताओगे आप, n-1d ऑर्बिटल. डी हमारे स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हो गए यहाँ पे. तो क्या क्या पॉइंट देखे देखो हम डी ऑर्बिटल्स के बारे, ट्रांजिशन के बारे में. व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिलोंग टू द डी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल. ओके. सेकंड, in case of transition metal atom has the incomplete d सब, उनका d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहेगा या उनका कैटायन भी रहेगा तो उसके पास भी d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट रहेगा. मतलब इन शॉर्ट the elements with their incompletely filled d orbital either in the atomic state or in their common oxidation state are called as a transition element. What is the third point, they exhibit the properties between the s block and p block.
Like example, electropositivity and reactivity, other properties shows what? Gradual change when we go from S block to P block. And last and the very important, that in case of all these elements, the n-1 d orbital is successively filled in the each element, correct? And n is called as the ultimate or outermost shell, where n-1 is called as the penultimate shell. So in case of transition or in case of d block element, हमारा last electron कहाँ पे enter करेगा? n-1 d में. यहाँ पे ये अगर हमारा आउटर मोस्ट शेल है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल है लेकिन यहाँ पे एंट्री नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा? n-1 सेकेंड लास्ट शेल के डी ऑर्बिटल में एंट्री करेगा. Okay. So we have seen a general part. Now we'll go for the next heading. Third heading, that is position in the periodic table. मतलब exactly where they are placed in the periodic table. What is the position? So what is the first? We already know that they are placed at the center with S block on one side and P block on the other side. So they are placed. they कहाँ पे है कि they are placed at the center of the periodic table. यहाँ में हमने देखा था first इसमें they are placed at the center. S block on the left hand side and P block on the right hand side. Correct? Okay. They are placed at the center with S block on the one side and P block on the other side. Second point, but the main place. They are placed in the periods. They are placed in the period 4 to 7 and group 3 to 12 of the periodic table. Exactly where they are placed. That in the मतलब इनका ये हमारा main point है कि अगर suppose in the exam they ask कि where they are placed, so we should know that they are placed in the period 4 to 7. What is period? Period means we know that horizontal row are called as a period. And what is group? Vertical column of the period, horizontal row of the periodic table are called as a period, and vertical column are called as groups. Vertical columns are called as groups, correct? So they are placed where? In the period 4 to 7 and group 3 to 12 of the periodic table. अगर अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो पीरियड की बात करोगे तो ग्रुप मालूम है, यहाँ से थर्ड ग्रुप और यहाँ पे 12th है. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. तो ये हमारे ग्रुप्स है. और पीरियड कौन सा आएगा? यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, ये हमारा सेकेंड पीरियड है, ये फर्स्ट पीरियड, ये हमारा थर्ड पीरियड
तो यहां से लेके इधर 4th, 5th, 6th एंड 7th, ये 4th, 5th, 6th एंड 7th ये पीरियड है। सो दे आर, देखो फर्स्ट एलिमेंट में हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे लिथियम आएगा, यहाँ पे सोडियम आएगा, उनके बाद यहाँ से लेके, बट यहाँ से ये दो ग्रुप नहीं, इधर से लेके ये। So they are placed in the which period? 4th, 5th, 6th and 7th period. The horizontal rows are called as the period. So which period? 4, 5, 6 and 7th. And which group? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so I can just write down here. So they are placed in the period 4 to 7 and group 3 to 12 of the periodic table. इनका ये position है. So in the exam they ask the question, okay, where are the transition elements? Where are the D block elements are placed? So they are placed in the period 4 to 7 and the group 3 to 12 of the periodic table. Okay, then next point. They constitute 3D, 4D, 5D and 6D series. They constitute which series? 3D, 4D, 5D and 6D. मतलब what is 3D here? I'll explain. मतलब ये जो D block element देखो, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा? D में, तो हम उसे D block बोलेंगे। तो D block की कितने सीरीज है? 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। मतलब कैसे मालूम है? देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारा स्कैंडियम है और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारा जिंक है। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में एंट्री करेगा और यहाँ से चला जाएगा जिंक तक, तो इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हमारा सीरीज है उसे बोलते हैं 3D। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंट्री करेगा वाई, वाई मतलब इट्रियम से लेके, और यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारा जो है वो है हमारा कैडमियम। यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट है La मतलब लैंथनम, यहाँ पे लास्ट एलिमेंट हमारा है मर्क्यूरी, ऐसे। और यहाँ पे एलिमेंट है एक्टिनियम और यहाँ पे हमारा एलिमेंट है विद एटॉमिक नंबर 112, ऐसा मतलब Cm, Cn, Cn। बट ठीक है, इसका इतना जरूरी नहीं है। देखो हमें डिटेल में इसके बारे में ज्यादा स्टडी करना है, फर्स्ट सीरीज के बारे में ज्यादा स्टडी करना है। तो ये हमारा मतलब जब मैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंट्री करेगा? 3D में। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 4D में, इनके लिए इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 5D में, और इनके लिए इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 6D में। मतलब जब मैं स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो उनके पास जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो कौन से ऑर्बिटल में एंट्री करेगा? 3D में। और यहाँ पे आएगा 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 एंड 3D10। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा? 4D1, 4D2 लेके 4D10। यहाँ पे आएगा 5D1, 5D2 और यहाँ पे आएगा 5D10। और यहाँ पे आएगा 6D1, 6D2 एंड 6D10। तो मतलब इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा 3D में, तो इसे बोलना है 3D सीरीज, इसे बोलना है 4D सीरीज, इसे बोलना है 5D सीरीज और इसे बोलना है 6D। और इस सीरीज को हम लोग और भी बोलते हैं, दिस सीरीज इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसे बोलोगे आप सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, इसे बोलोगे आप थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और इसे बोलोगे आप फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो हमारे पास कितने ट्रांजिशन सीरीज है? 4 है। सो आइदर यू कैन कॉल देम एज अ, all these elements are called as the first transition series, all these elements are called as the second transition series, all these elements are called as the third transition series, or all these elements can be called as the fourth transition series. So here we have got 4 series. So they constitute the big series 3D, 4D, 5D and 6D series. Correct? The next point. The 3D series. 3D series
contains elements from scandium, जिसका एटॉमिक नंबर है 20, Z एटॉमिक नंबर 21, टू जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30। मतलब हमारा जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में फर्स्ट एलिमेंट कौन सा आएगा? स्कैंडियम, जिसका Z मतलब एटॉमिक नंबर का सिंबल, एटॉमिक नंबर 21 से लेके जिंक जिसका एटॉमिक नंबर है 30। फिफ्थ वन पॉइंट, द 4D सीरीज, the 4D series has element from yttrium, yttrium जिसका एटॉमिक नंबर Z आएगा एटॉमिक नंबर 39, टू cadmium, to cadmium whose atomic number is equal to 48। ओके, हमारा 4D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट कौन रहेगा? इट्रियम रहेगा और लास्ट एलिमेंट रहेगा कैडमियम रहेगा। The 5D series starts from lanthanum atomic number 57, to mercury atomic number 80, मतलब 57 से लेके 80, बट विदाउट those from cerium to lutetium। मतलब 57 से लेके 80 तक के एलिमेंट, लेकिन इसके बीच में ये एलिमेंट नहीं आएंगे। कौन से? सीरियम से लेके लुटेशियम एलिमेंट नहीं आएंगे। ये क्यों नहीं आएंगे हम लोग बाद में देखेंगे। और 7th वन, द 6D सीरीज starts from 6D series start from actinium to क्यूरियम, मतलब एक्टिनम से लेके क्यूरियम तक विदाउट those from thorium, thorium to lawrencium। मतलब एक्टिनियम 6D सीरीज कहां से स्टार्ट होगा? 6D सीरीज विल स्टार्ट फ्रॉम एक्टिनम टू क्यूरियम, मतलब एक्टिनम से लेके क्यूरियम तक स्टार्ट होगा। बट इसमें कौन से एलिमेंट नहीं रहेंगे? थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर है 90 और लॉरेंशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 103। मतलब एक्टिनम का एटॉमिक नंबर 89 है, 89 से लेके लास्ट कहाँ पे आ रहा है? 104 तक आ रहा है, लेकिन उसमें ये एलिमेंट नहीं रहेंगे। कौन से एलिमेंट नहीं रहेंगे? एक मिनट, 89 से लेके 112 तक ये एलिमेंट्स रहेंगे। 89 से लेके 112 तक एलिमेंट रहेंगे, लेकिन उनके बीच में एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103 के एलिमेंट नहीं रहेंगे। करेक्ट, बट एनीवे
हमें 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D के बारे में ज्यादा पढ़ाई करना ही नहीं है, हमें बेसिकली कहाँ पे फोकस करना है, 3D पे। तो ध्यान में रखना हमारे पास कितने सीरीज है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 3D सीरीज को क्या बोलोगे आप, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। 4D को क्या बोलोगे आप, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। 5D के लिए क्या बोलना है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। और 6D के लिए क्या बोलोगे आप, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो हमारे पास 4 ट्रांजिशन सीरीज है, करेक्ट। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D एंड 6D। 3D का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, स्कैंडियम है, और लास्ट एलिमेंट जिंक। इनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। 4D का फर्स्ट एलिमेंट इट्रियम है, लास्ट एलिमेंट कैडमियम। 5D का फर्स्ट एलिमेंट लैंथनम है, लास्ट एलिमेंट मर्क्यूरी है, लेकिन उसके बीच में ये एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। और 6D का फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनम है और लास्ट एलिमेंट सीरियम है, जबकि 90 से लेके 10 तो उसमें आगे इंक्लूड नहीं करना है। ओके, ये हमारा क्या हुआ, पोजीशन। व्हाट इज द मेन पोजीशन, दैट दे आर प्लेस्ड इन द पीरियड नंबर 4 to 7 and group number 3 to 12 of the periodic table. Okay. Okay, so we have just done the basic part over here. In the next lecture, we will do it with the electronic configuration and oxidation state. That part we'll do it in the next lecture. Okay, so we'll stop it over here.